Hi everyone, I welcome you back to Sign Love Light Healing. I hope you guys are doing well. Let us check what are the messages for you guys. What are the spirit guides wanting to let you know? What are your energies? What are your person's energies? आपके connection की energies क्या है? So I have already shuffled up the cards. The overall energy or maybe the collective energy that I'm picking up today is control issues. Maybe आपके जो person है वो आपको ज़्यादा control करना चाहते हैं या फिर control करते हैं. Maybe you are trying to control them, you both are trying to control your connection, or maybe influence your connection, or maybe trying to control certain circumstances or situations which are out of your hands. और वही कंट्रोल अननेसेसरी जो आप कंट्रोल करने जा रहे हैं कोई भी एक सिचुएशन को, पर्सन को, वो आपको ज़्यादा पेन हर्ट दे रहा है, प्लस आपका जो बर्डन है वो भी ज़्यादा बढ़ा रहा है. क्लियर? सो you should stop controlling things which are out of your hands. Let angels do their work. Let your spirit guides guide you, and let them do the work. Let them take the lead. Okay. Let us check. I have already shuffled up here. We have Knight of Swords. So आपके जो person है, they want there is communication coming for both of you, and which is really really necessary. With this energy I'm getting, there is some sort of rage. ओके, कुछ गुस्सा है, कोई किसी बात का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, उसी चीज की वजह से फ्रस्ट्रेटेड है आपके पर्सन, या फिर आप दोनों ही फ्रस्ट्रेटेड है. सिचुएशन ही ऐसी हो गई है वहां जहाँ पे आपको पता है कि कम्युनिकेशन इज नेसेसरी, बट व्हेन यू गो एंड कम्युनिकेट विथ योर पर्सन, इट वुड ईदर end up into an argument, or maybe you feel that your person is trying to explain, maybe you feel that you are trying to keep your point and your person takes it otherwise. Okay, that could be energies of your connection, or maybe this is the way how you both are communicating with each other. आप दोनों को communication करना है. You both are desperate sometimes, you both want to clear things out, sort things out, but थोड़ा सा गुस्सा कंट्रोल करने की जरूरत है. ओके, कंट्रोल, एज आई सेड, कंट्रोल योर एंगर, दैट्स अनदर थिंग आई एम गेटिंग. कंट्रोल योर डेस्परेशन टुवर्ड्स अ सिचुएशन, और मे बी योर आउटकम दैट यू हैव डिजायर्ड. ओके, वो कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है. जो जैसे होता है वैसे होने दीजिए. जिस टाइम पे, जिस टाइम पीरियड पे, जिस वे में होना चाहिए उस वे में ही उसको होने देना चाहिए. अदरवाइज इफ यू ट्राई टू डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ यूनिवर्स, तो वो आपको ज्यादा हर्ट एंड बर्डन देगा. Fine. Next we have is Eight of Cups. So you want to move towards calm waters. Okay, with this card I'm getting, you are wanting to move forward. Okay, move forward, move past your issues, or maybe जो भी issues आपके connection में चल रहे हैं उससे आपको आगे बढ़ना है. Okay, you want to sort things out, you want to mend things with this person, you want to ignore the negative aspects of this connection and only focus on the positive things, because the person here is important for you. Secondly, emotions, आप दोनों इमोशनली खुश नहीं है. हो सकता है आप दोनों बहुत ही अफेक्ट होते हैं आर्ग्यूमेंट्स, या फिर द कन्वर्सेशंस दैट यू हैव, और मे बी जो भी बातचीत होती है, मिलना है, उसके बाद जो आपका कन्वर्सेशन रहता है मिलने के बाद, वो चीज़ आपको भी अफेक्ट करती है. सिमिलरली आपके पर्सन को भी इतना ही अफेक्ट करती है. ओके, या सो आई डोंट नो व्हाई, बट 2 बार मैंने रिकॉर्ड किया एंड इट वाज नॉट recorded. Again I'm trying now. Fine. So with this Eight of Cups I'm getting an energy, picking up an energy of moving forward. अभी ये कनेक्शन से भी आप मे बी आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर आपके पास्ट में जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं उससे आपको अभी फर्क नहीं पड़ना चाहिए. अगर पड़ रहा है देन यू वांट टू मूव फॉरवर्ड नाउ विथ योर लाइफ. मे बी यू, योर पर्सन, और बोथ ऑफ यू. Okay, maybe your relationship is very important for you guys and you want to move past the issues that you have faced. Okay, in this connection. Secondly, with the moon placed here, I'm also getting emotions are very high. आप दोनों इमोशनली अटैच्ड है, इमोशंस इन्वॉल्व है आपके कनेक्शन में. सेकेंडली, आप दोनों ही कहीं ना कहीं खुश नहीं है. इमोशनली आर नॉट डूइंग वेल, मे बी विदाउट ईच अदर, और जब भी आप झगड़ते हैं, फाइट्स करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, यू बोथ आर गेटिंग अफेक्टेड. और वही चीज़ आपको इतना ज़्यादा अफेक्ट करती है कि वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे उसका असर आपको दिखता है. बी इट योर हेल्थ, योर फिनेंसेस, योर करियर, योर पर्सनल लाइफ, your relations with people around you, anything and everything can be affected. Okay,
तो आपको ये सारे इश्यूज को भी ध्यान में रखना है, एंड देन यू आर सपोज टू मेंड the issues or maybe things between you and your person. Okay, we have chariot card, so again ego clashes, कल की एनर्जी वापस मुझे दिख रही है. Also with this card I'm getting balance. आपको थोड़ी सी चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है. मे बी यू बोथ आर ट्राइंग टू, both are juggling hard to keep and maintain the balance, okay, in your connection, or maybe different aspects of your life, focusing on other things which are equally important. उस पे भी आप बैलेंस करना चाहते हैं. सेकेंडली आप यू वांट टू बैलेंस थिंग्स आउट इन योर कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर पर्सन. आपको बहुत सारी फाइट्स अगर है, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा बैलेंस लेने की ज़रूरत है. प्रैक्टिकल अप्रोच एज वेल एज इमोशनल अप्रोच, इमोशनल इंटेलिजेंस, जो भी आप बोलो, वो होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके केस में. सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स. जो भी आपका हर एक इंसान का जो रिलेशनशिप है, कनेक्शन है, वो डिफरेंट होता है. तो टेक इट एज इट फिट्स. सो बैलेंस इज नेसेसरी. तो वो आपको मेंटेन करना है. सेकेंडली ईगो, फियर बेस्ड ईगो. ओके, कुछ एक चीज का आपको या आपके पर्सन को या दोनों को कोई फियर है, और वो आपको लगता है कि फियर की वजह से उनका जो ईगो है वो बिल्ड होता है. ओके, एंड आपको लगता है ये पर्सन इगोइस्टिक है, बट ऐसा कई बार नहीं होता. हो सकता है उसको कुछ चीज का डर है, एंड उसकी वजह से वो दे आर नॉट ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट यू, और मे बी दे आर कीपिंग अ डिस्टेंस from you, or maybe they are avoiding talks, they are avoiding communication, maybe they are avoiding so many things. Okay, so you feel कि वो egoistic है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि आप egoistic है, while you are just trying to mend things with your person. Okay, so ये सारी चीजें हो सकती है. मे बी क्लियर द क्लटर, दैट्स अनदर मैसेज दैट आई एम गेटिंग. We have Empress. Yesterday we got Emperor card. Today we are having Empress. So mother figure. आपके कनेक्शन में अगेन एक ऐसा पर्सन है. इट कुड बी फेमिनिन एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी. इट्स नॉट अ जेंडर बेस्ड रीडिंग, सो इट कुड बी एनीबडी जो बहुत ही ज्यादा इमोशनल है, बहुत ही ज्यादा इमोशनल है, जो बहुत ही सेल्फलेस है. ओके, जिनको सिर्फ देना पसंद है, रादर देन taking things from another person, things, or maybe it could be any exchange. Okay, secondly वो एक गिवर है. ओके, एंड फुल ऑफ इमोशंस, मेच्योर, लीडरशिप, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इनमें. एंड जहाँ पे भी ये पर्सन जाते हैं, वो एक इम्प्रेशन, ऐसे इम्प्रेशन छोड़ के आते हैं. ये आप हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हैं. सो जहाँ पे भी ये आपके पर्सन जाते हैं या फिर आप जाते हैं, वहाँ पे एक ऐसी इम्प्रेशन छोड़ के आता है कि जो भी इनके साथ डील करते हैं, जो भी पर्सन इनके कांटेक्ट में आते हैं, वो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं पॉजिटिवली. ओके, सो मे बी दे कुड बी अ काउंसलर, मे बी पब्लिक स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर, जो भी पब्लिक के साथ डील करते हैं. ओके, इट कुड बी एनीबडी. टीचर हो सकते हैं, या फिर मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं वो भी हो सकते हैं. ओके, सो इट कुड बी एनी प्रोफेशन दैट योर पर्सन कुड बी इन, बट उनका इन्फ्लुएंस बहुत ही होता है लोगों पर. ओके, मे बी दे आर डीलिंग विथ अ लॉट ऑफ पीपल. Okay, in numbers. Next we have is Knight of Cups. They want to come towards you. Okay, maybe you want to go towards your person, want to talk with them, you want to communicate, you want to meet them, you want to offer the cup of love to them, but there are certain circumstances, there are certain situations which you are supposed to heal first, which you are supposed to focus on, which you are supposed to balance, and then उसके बाद ही आप आपके पर्सन के पास जाएंगे. क्योंकि अभी अभी आप दोनों ने अननेसेसरी बर्डन ले रखा है, विच यू आर सपोज टू लेट गो ऑफ. स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल थिंग्स जो आपके कंट्रोल में नहीं है. ओके, सो गो विद द फ्लो, लेट यूनिवर्स डू व्हाट इट हैज टू डू. एंड बर्डन लेने से कुछ भी नहीं होता है, बिकॉज इफ यू टेक अप अननेसेसरी बर्डन, तो आपका जो आउटकम है वो चेंज नहीं होने वाला, सिर्फ आपका प्रेजेंट खराब होगा. एंड प्रेजेंट में जो आप बर्डन्स लेते हैं वो एडअप होते जाएंगे. Fine. Now let us check what are the angel messages for you guys. Another collective message that I'm picking up is pain. Pain, it could be physical pain that your person or maybe you are dealing with. So take care of your health. Okay. Health अगर आपकी बिगड़ रही है इन सारे issues की वजह से, या फिर it could be anything.
तो आपको अपनी हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए, हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए. दैट्स अनदर मैसेज. Okay, let's check. A year from now, okay. So, whatever you are expecting, it could take a year from now. Okay, we have take action again. Yesterday we got the same card. So you are supposed to take action towards whatever you are expecting or maybe whatever you are working for. आपके जो भी आपको जो भी अचीव करना, it could be anything, a connection with your person, it could be your career, job, जो भी aspect से आप connect कर रहे हैं इस reading को, you're supposed to work towards it and take action. Okay, we have opportunities. So opportunities are already there, present around you. आपके angels आपको वो cup दे रहे हैं, but you are not ready to pick that up. वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, बट यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट, एंड दैट्स द रीजन वाई इट इज गेटिंग डिलेड. ओके, वी हैव यू आर रेडी. यू आर रेडी, तो ही आपके एंजल्स आपके पास अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे. अगर एक चीज आपके लाइफ में नहीं हो रही है, देन यू आर नॉट रेडी फॉर इट. ओके, सो सिंपल एज दैट. इन द नियर फ्यूचर, सो इट कुड टेक अ ईयर फ्रॉम नाउ टू मैनिफेस्ट कंप्लीटली, बट आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस इन द नियर फ्यूचर मुझे आते दिख रहे हैं. ओके, सो जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें अगर पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं, देन इट वुड हैपन वेरी सून, बट यू हैव टू बी पेशेंट. Okay, so the second last card we have here is forgiveness. So you and your person, you both are supposed to forgive each other. Maybe you should forgive a person, your person should forgive you. So yeah, forgiveness is required. अगर अंदर मन में grudges रख के अगर आप किसी के साथ डील करेंगे, then maybe आप अपना 100% इस कोई भी connection को नहीं दे पाएंगे. We have asked for help from others. So help is already present around you. हो सकता है yesterday we also got a message of third person who is involved in your connection. So हो सकता है कि आप इस third person mutual friend की या फिर कोई भी थर्ड पर्सन जो आपको लगता है ट्रस्ट वर्दी है, जो आप दोनों की हेल्प कर सकते हैं, उसकी भी हेल्प आप ले सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वी विल चेक मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन एंड 5 कार्ड्स. ओके, वी हैव यू एंड आई वर टू यंग. अगेन एज इश्यूज. I left when I saw you with somebody else. Maybe you are doubting your person to be dealing with somebody else. Okay, a third party could be involved. I left you before you could leave me. Okay, I love you unconditionally. And the last one we have is I don't react when people mention you. Yeah, so we are getting repeated messages since 2 days. I regret lying to you. Maybe you have lied to your person, maybe they have lied to you. Take it as it fits, as I always say. आपका सिचुएशन क्या है वो आपको ज्यादा पता रहेगा. सो किसी ने भी यहाँ पे अगर देयर माइट बी सम हिडन ट्रुथ्स, जिसने छुपा है उसको पता ही होगा, तो मे बी यू शुड ट्राई टू अवॉइड देम so as to build trust between you and your person, to build the connection again, and you should be honest with your person. Okay, so yeah, this was your reading. I hope it helped you in some way, and I hope it resonated well with you. I'll be back with another reading soon. Till then, take care. Bye bye. Stay blessed.